Hello everyone, I welcome you all after our quick break. Now, as we were doing exercise 10.3, in this exercise till now we have covered three questions. Question 1, in which we have calculated the area of different rectangles. Question 2, in which we have found the area of different squares. And question 3, in which we have found the that which a rectangle is the largest and which one is the smallest, right? So till now we have done three questions. Now we are going to start the session with question 4. So let's begin the session. Question 4 is saying the area of a rectangular garden 50-meter long and 300 square meter. The area of a rectangular garden 50-meter long is 300 square meters. Find the width of the garden. So here we are solving question number 4 of exercise 10.3. Right, in this question they are saying that there is a rectangular garden. The area of that garden is, area means we are talking about the inside portion of this garden, is 300 meters square, right? And the length of this is 50 meter. So length is given as 50 meters and we have to calculate the width of this garden. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी एक एग्जाम्पल में कर चुके हैं. सो वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, हम पहले वो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे एंड देन उसके बाद फॉर्मूला एंड देन उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, राइट? सो आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन. आई एम गिविंग यू 40 seconds टू सॉल्व इट. चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा. इन दिस क्वेश्चन लेंथ इज गिवन एज 50 meters. एरिया जो दिया हुआ है वो है 300 meter square. We know the formula of rectangle, area of rectangle is equals to length into width. यहाँ पर breadth और width whatever it is. So यहाँ पर हमारा जो एरिया है वो है 300 which is equals to 50 into W.
We have to find the value of this W, so we will do 300 divided by 50, and simply the value, value of this would be 6 meters. This would be a answer, right? Chaliye. So this is how we have done. Please check your answer. I am giving you 30 seconds. Done? Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Question number 5 of exercise 10.3. ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 5 इज सेइंग व्हाट इज द कॉस्ट of tiling a rectangular plot of land 500 meters long and 200 meters wide at the rate of 8 rupees per 100 square meter. ठीक है, तो अब उन्होंने बोला है, ये आपको याद है हमने एक टाइल वाला क्वेश्चन किया था, ये एग्जैक्टली सेम है. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है. इस रेक्टेंगुलर प्लॉट में हमें क्या करना है, इसकी जो लेंथ गिवन है वो है 500 मीटर्स और जो विड्थ है वो है 200 मीटर्स. अब इन्होंने बोला कि यहाँ पर हमें टाइलिंग करनी है, ठीक है. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइल्स आएंगे यहाँ, और जो रेट होगा वो होगा, एक टाइल का रेट होगा मतलब पर 100 स्क्वायर मीटर का रेट होगा 8 रुपीज़. तो हमारा टोटल कितना 100 स्क्वायर फीट एरिया है, 100 स्क्वायर मीटर एरिया है. अकॉर्डिंगली ओनली वी कैन फाइंड आउट द रेट, टोटल कॉस्ट, राइट. So let's start the question by first calculating the area of this plot, right? So please find out the area. Please find out the area.
चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको लेंथ गिवन है, आपको विड्थ गिवन है, राइट। तो सबसे पहले हम जो भी गिवन फैक्टर्स होंगे यू हैव टू स्टार्ट विद दैट। आपको लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है, एंड यू नो दैट फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू विड्थ। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 500 इंटू 200 करोगे। यहाँ पे 5 2s are 10, 1 2 1 2, so there are ओके। सो इतना स्क्वायर मीटर आपका एरिया है, ठीक है। 1 लाख स्क्वायर मीटर उन्होंने कहा पर 100, मतलब 100 के लिए 8 रुपीज़ लगना है। तो 1 लाख के लिए कितना रुपये लगेगा। उन्होंने कहा कि 100 स्क्वायर फीट में 100 स्क्वायर मीटर के लिए 8 रुपीज़ लगना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1 स्क्वायर मीटर के लिए कितना लगेगा। 1 स्क्वायर मीटर के लिए लगेगा 8/100, राइट। एंड अब आपको बोला जा रहा है कि 1 लाख स्क्वायर मीटर के लिए कितना लगेगा, राइट। दिस इज योर क्वेश्चन। सो 1 लाख into 8 divided by 100, so it would be 8,000 rupees it will take to cover the whole rectangular plot with the help of tiles, right। डन। चलिए ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। what is its area in square meters। ये क्वेश्चन बहुत ही सिमिलर है, हमने इसका एक एग्जाम्पल किया हुआ था इन विच द लेंथ वॉज गिवन एज 2 मीटर एंड द विड्थ वॉज गिवन एज 1.50 centimeters, and you in that also you just have to calculate the area। तो ये क्वेश्चन मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आई एम गिविंग यू 1 minute टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक बार आप सॉल्व करिए फिर हम देखते हैं, है ना। फिर हम चेक करते हैं साथ में। मैं थोड़ी सी हेल्प करती हूँ आपकी, बट सारा क्वेश्चन आप ही खुद सॉल्व करोगे बिकॉज हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया हुआ है। 2 मीटर्स ये है और यहाँ की आपकी जो डिस्टेंस गिवन है वो है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको इसमें एरिया कैलकुलेट करना है। एंड वन मोर थिंग, दिस इज़ इन मीटर, दिस इज़ इन मीटर एंड सेंटीमीटर। तो या तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को सेंटीमीटर में करेंगे, इस पूरे को सेंटीमीटर में करेंगे, या फिर हम इस 50 सेंटीमीटर को बस
मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो सब कुछ मीटर मीटर में हो जाएगा, राइट। तो पहले एक बार सोचिए, देन ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। टेक योर टाइम। चलिए, आई थिंक आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। इट वॉज नॉट दैट डिफ़िकल्ट। मैंने आपको पहले ही बताया कि एरिया इज़ लेंथ इनटू विड्थ। हमारा यहाँ लेंथ गिवन है 2 मीटर्स एंड मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप इसको ही मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, इट वुड बी ईजी। 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, यदि हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट वुड बी 1.50 मीटर। सो 1.50 मीटर्स वी विल राइट। 2 zeros are 0, 2 5s are 10, so 0, 2 1s are 2 and 3, right? And meter square. This would be your answer. This would be the area of the space, area of the tabletop in meters. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। A room is 4 meter long and 3 meters 50 centimeter wide. How many square meter of carpet is needed to cover the floor of the room? ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस क्वेश्चन लिखने वाले ने क्या किया है, आपको कंफ्यूज करने के हिसाब से कुछ वर्ड्स डिफ़िकल्ट लिख दिए हैं जिससे आप कंफ्यूज रहें। लेट मी ड्रॉ द फिगर एंड देन यू विल गेट इट। ये आपका रूम है। उन्होंने कहा कि कितना कारपेट लगेगा इस रूम को completely कवर करने के लिए। So I am putting the carpet. How much carpet would be required? So obviously अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि this carpet is nothing but the area, राइट। कितना एरिया कैलकुलेट करना है ये बोला गया है इस क्वेश्चन में हमें, कि कितना एरिया होगा इस रूम का। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। चलिए शुरू करिए, फाइंड इट आउट।
चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको लेंथ गिवन है 4 मीटर, विड्थ आपको गिवन है 3 मीटर्स 50 सेंटीमीटर्स, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैलकुलेट करने के लिए लेंथ इंटू विड्थ होता है। लेंथ इज 4 मीटर, विड्थ इज 3.50 मीटर्स। मीटर स्क्वायर, ये होगा आपका एरिया। अगर आपका एरिया ये है, इट मीन्स आपको इतना कारपेट की ज़रूरत होगी। वो बोल रहे हैं कि कितने कारपेट की ज़रूरत होगी टू कवर द रूम फ्लोर। तो हमें कितने कारपेट की ज़रूरत होगी, 14.00 मीटर स्क्वायर कारपेट की, ठीक है। ये हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Question 8 is saying a floor is 5 meter long and 4 meter wide. A square carpet of side 3 meter is laid on the floor. Find the area of the floor that is not carpeted. मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ इस क्वेश्चन का, देन यू विल बी एबल टू गेट इट। ये हमारा रूम है, ठीक है। इस रूम की जो लेंथ है वो है 5 मीटर्स, जो आपकी विड्थ है वो है 4 मीटर्स, ठीक है। इस रूम के अंदर एक स्क्वायर कारपेट है, ठीक है। एक स्क्वायर कारपेट बिछा हुआ है जिसकी साइड है 3 मीटर्स, राइट। 3 मीटर्स की एक साइड, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर। तो अब वो बोल रहे हैं कि आपको कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है, वो एरिया कैलकुलेट करना है जिसमें कारपेट नहीं है। ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए शुरू करिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करके देखिए।
होप आपने कर लिया होगा। लेट्स डिस्कस कि हमें इसमें करना क्या है ना। मैंने क्या आपने क्या किया अभी तक वो चेक करिए कि आपने भी यही किया है या नहीं। यहाँ पर आपको दिया गया है एक बड़ा सा रूम। ऑब्वियसली आपको पूरे रूम का एक, अगर मैं आपको कहूँ कि एक पूरा रूम है, रूम की जगह पे मैं कहूँ कि आपने टोटल 50 रुपये खर्च किए हैं। उन 50 रुपीज़ में से आपने 20 रुपीज़ खर्च किए चॉकलेट्स में, तो आपके बाकी के रुपीस कितने थे जो आपने बाकी सामान में खर्च किए। तो आप सिंपली क्या करोगे, 50 में से 20 माइनस कर दोगे, आपको 30 मिल जाएगा, राइट। ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पूरे रूम का एरिया निकालेंगे, फिर इस कारपेट का एरिया निकालेंगे। रूम के एरिया से माइनस कर देंगे हम कारपेट का एरिया, तो हमें मिल जाएगा, राइट। अब आप एक बार करके देखिए। चलिए, आपका रूम का एरिया क्या आया। चलिए हम रूम की बात करते हैं। एरिया ऑफ द रूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, which is equals to 5 into 4 meters and which is equals to 20 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका रूम का एरिया। नाउ कारपेट की एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ द कारपेट इज साइड इंटू साइड, which is equals to 3 into 3 meters, which is equals to 9 मीटर स्क्वायर। अब मैंने आपको समझाया था कि 20 में से जब हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे देन वी विल गेट द एक्चुअल area without carpet, which is equals to 11 meter square, which would be your final answer. Please check your answer. I hope you have checked your answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 5 square flower beds, each of side 1 meter, are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide. What is the area of the remaining
लैंड। ठीक है, चलिए यहाँ हमें बता दिया गया है कि टोटल लैंड, टोटल कितनी जगह पे फ्लावर हैं, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। नाउ वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। Okay, let's solve question number 10. By splitting the following figures into rectangle, find their areas and we have to measure it in centimeters. अब आपको जो फर्स्ट फिगर दिया गया है, let me draw the figure here. फिगर हो सकता है एग्जैक्टली वैसा ना बने जैसे आपकी बुक में है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट व्हाट यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। इस टाइप का कुछ एक आपका फिगर गिवन है। अब हमें क्या करना होगा, इस फिगर में ही हमें क्या करना है, कुछ चेंजेस करके इसको नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में चेंज करना है। तो एक तो हमारा रेक्टेंगल ये बन जाएगा, राइट। दूसरा रेक्टेंगल आप ऐसा बना सकते हैं और तीसरा चौथा रेक्टेंगल आपका ऐसा बन जाएगा, राइट। इस तरीके से आप कितने भी रेक्टेंगल्स बनाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इतना भी काफ़ी नहीं है, अगर आपको और रेक्टेंगल बनाना है तो आप इसको और रेक्टेंगल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम सारे रेक्टेंगल्स का एरिया कैलकुलेट करेंगे एंड एट द एंड हम सारे एरियाज को ऐड कर देंगे, सो वी विल गेट द फाइनल आंसर। दूसरा क्वेश्चन भी बताती हूँ। There is a figure something like this, राइट। अब इसमें भी आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में इसको कन्वर्ट करना है, तो आप इसको यहाँ से इस तरीके से कट कर सकते हो। आपका एक रेक्टेंगल हो गया ये, एक हो गया ये, एक हो गया ये। तो तीनों रेक्टेंगल का आप एरिया कैलकुलेट करोगे एंड लास्ट में आप तीनों एरियाज को ऐड कर दोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर ए, सॉल्व करिए बाय योर ओन।
चलिए, आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। यहाँ पर आपको सारी साइड्स गिवन है, आपको सिर्फ इसे नंबर ऑफ रेक्टेंगल में चेंज करके और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। चलिए, फर्स्ट फिगर का इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ इट हियर, सो आई एम अनेबल टू टेल यू। सेकेंड फिगर से हम यहाँ पर ही देख लेंगे। Because I cannot draw first figure here, that is why I am not explaining you that. ये आपका सेकेंड फिगर, जिसमें आपके 5 यहाँ की लेंथ गिवन है, ये 1 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, सो सामने वाली भी 2 होगी, राइट। ये पूरी 3 थी, अगर ये 2 है, ये 2 है, तो ये 1 1 होगी, यहाँ वाली भी ये 1 1 होगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला जो हमारा फिगर है, फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकेंड रेक्टेंगल, थर्ड रेक्टेंगल, तो हम एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल कैलकुलेट करते हैं, विच इज़ 2 into 1 लेंथ into width, which is equals to 2 centimeters. Area of second rectangle, which is equals to length into width. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेंथ इज 5, width is 1, so it is also equals to 5 centimeters. Now we will calculate area, यहाँ पर भी सेम मिस्टेक है, लेट मी करेक्ट इट। Of third rectangle, length into width 2 into 1, which is equals to 2 centimeters. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया प्लस थर्ड रेक्टेंगल का एरिया, हम सब कुछ ऐड कर देंगे। 2 + 5 + 2, which is equals to 9 centimeters square. Please check your answer. Your answer should be 9 centimeters square only. Please check it. I am giving you 40 seconds.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड देयर एरियाज। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट वाला जो फिगर है वो एक एल शेप है। आप इस एल शेप को क्या कर सकते हैं, यहाँ से कट कर दीजिए या फिर यहाँ से कट कर दीजिए एंड यू विल गेट टू रेक्टेंगल्स। नाउ कैलकुलेट द एरिया ऑफ दीज टू रेक्टेंगल्स। चलिए आपने यहाँ पर टू रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए। सॉरी, एक था आपका एक ये रेक्टेंगल एंड दूसरा मैंने आपको बोला कि आप यहाँ से भी कट कर सकते हो, तो ये भी बन जाएगा एक दूसरा रेक्टेंगल, राइट। अब यहाँ पर ये है 2, ये है 10, ये है 12। यहाँ का अब क्या होगा, यहाँ तक 10 है, राइट, एंड यहाँ से यहाँ वाला जो है वो 2 है, तो टोटल 12 हो जाएगा। ये आपका 8, ये आपका 8 होगा, ये आपका 2 होगा, राइट। चलिए फटाफट कैलकुलेट करिए। चलिए जल्दी से कैलकुलेट करिए। चलिए आपका जो फर्स्ट वाला एरिया होगा, A1 लिख रही हूँ उसको, लेंथ इंटू विड्थ,
यहाँ पर आपकी लेंथ है 12 इंटू विड्थ है 2, सो इट इज़ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड आपका जो A2 है दैट इज लेंथ इंटू विड्थ विच इज़ 8 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने आपको कहा था यहाँ आपने दोनों एरियाज़ को ऐड कर लेना है। चलिए फटाफट ऐड कर लीजिए। चलिए आपने इसको ऐड कर लिया होगा। ऐड करने पे आपको रिजल्ट मिला होगा 30 + 10 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। चलिए ये हो गया आपका आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सॉरी, इन दिस क्वेश्चन देर आर 4 small rectangles, or we can say we can use 2 squares here, right, and 1 rectangle. So this would be our 1 rectangle, and here it would be another square like this. चलिए अब कैलकुलेट करिए। ये आपका 7 है, ये 7 है, ये 7 है, हर लाइन लेंथ 7 गिवन है, राइट। चलिए अब फटाफट आप इसका एरिया कैलकुलेट करिए। चलिए आपका अगर हम स्क्वायर की बात करें तो इसका आप पहले एक एरिया निकालेंगे A1,
ये हमारा स्क्वायर है, A3 हमारा स्क्वायर है, और जो A2 है वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, A1 का यदि हम कैलकुलेट करेंगे एरिया, तो इट वुड बी 7 इंटू 7, तो वो हमारा हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी हमारा हो जाएगा 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल की बात करें तो हमारी विड्थ तो 7 है, बट जो हमारी लेंथ है वो 7 प्लस 7 प्लस 7 है, विच इज़ इक्वल्स टू 21। सो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। एंड अब हम तीनों को ऐड कर देंगे, फटाफट ऐड कर दीजिए। डन, एडिशन डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। In this question we can see there is one T shape. This would be your first rectangle and this would be your second rectangle. Here the length is 5, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 4, 4. Find out the area of this rectangle, then find out the area of this rectangle.
The area of first rectangle would be 5 into 1, which is equals to 5 centimeters square. Area of second rectangle would be 4 into 1, which is would be equals to 4 centimeters square. If we will find out the total area A1 plus A2, it would be equals to 9 centimeters square. This would be your final answer for the last figure, this 11t. 11 question number 11 C part, right? नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. दिस इज़ इट फॉर टुडे. बाय बाय.